Water is crucial for agriculture, and rainwater is the primary source of water. However, there is no effective method to conserve rainwater, causing subsurface water to remain unreplenished, and rainwater flows quickly into rivers. As a result, nearby streams, rivers, lakes, and ponds are drying up. The current agricultural system is facing a severe water crisis. खेत की मिट्टी खेत में, गाँव की मिट्टी गाँव में, खेत की मिट्टी खेत में, गाँव की मिट्टी गाँव में, खेत की मिट्टी खेत में। नौजवान हो रे नौजवान गाँव रे, नौजवान आओ रे, नौजवान जाओ रे, एक साथ बढ़ चलो मुश्किलों से लड़ चलो, एक साथ बढ़ चलो, मुश्किलों से लड़ चलो, श्रम के गीत गाते जाओ हंसते मुस्कुराते जाओ, श्रम के गीत गाते जाओ, हंसते मुस्कुराते जाओ, नौजवान हो रे नौजवान गाँव रे। नौजवान आओ रे, नौजवान जाओ रे। हम लोग किउल नदी में एक साथ जुटे हैं और ये संकल्प लेना है कि ये जो नदियां और गांव की जो नाले ये जो सूख रहे हैं इनको कैसे हम पुनर्जीवित करेंगे। आज जल यात्रा के सभी साथी और तिलकी मारन के ग्रामवासी शपथ लेते हैं कि यह जो किउल नदी है पानी से विहीन हो गई है। इसमें पुनर्जल लाने के लिए हम लोग सब मिलकर प्रयास करेंगे। In the present times, it is crucial to revive the rivers and streams by restoring water flow in them. However, this can only be achieved through the effective conservation of rainwater at the locations where it falls. समाज को जगाओ रे, पानी के लिए समाज को जगाओ। As we observe, water always flows downhills from a higher level to a lower level. This is the reason when it rains, the water flows downhill on the surface of the uplands, creating small rivulets that merge to form bigger drains, which further form large river downstream. During this time, the faster flow of water also removes the topsoil on the surface and carries it along. As a result, the river and drains dry up and the land becomes barren. इस चट्टान का पीछे भी आप देखेंगे मिट्टी है, इधर भी मिट्टी है और इधर भी मिट्टी है। ये पूरा चट्टान 1-2 साल पहले पूरा मिट्टी में भरा हुआ था और ये मिट्टी में कवर अभी चले गए तो ये सॉलिड चट्टान निकल गया। यही चट्टान का जो पार्ट हम इधर देख रहे हैं ये कैसे नरम हो जा रहा था, लेकिन यहाँ को जब हम कोशिश करेंगे तो ये टूटेगा नहीं है। मतलब ये जो सॉलिड चट्टान बन गया है ये मिट्टी का नीचे रहता तो ये आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में बन जाता था, लेकिन हम जितना ये मिट्टी हट जाएगा, जब पेड़ चला जाएगा, सब ऊपर का मिट्टी बरसात का पानी से धो जाएगा, तब ये सॉलिड चट्टान एक बार निकल जाएगा तो और कुछ नहीं बनेगा इसमें। So, how can we prevent soil erosion, conserve rainwater, and revive rivers and drains? To understand the phenomenon, we need to comprehend the watershed process based on ridge to valley concept. Ridge refers to the higher portion of land, while valley refers to the lower portion. Usually, watersheds can be intervened in two ways, naturally and human-made. Naturally, the more we protect trees, they help in conserving the soil from erosion, and ground-level water recharges by increasing the seepage into the subsurface water level. Jahir Than, the traditional worshipping place of tribals, is a good example of natural watershed. In human-made interventions means slowing down the flow of water through techniques such as creating stone bunds, contour trenches, staggered contour trenches,
gully plugging, check dams, and digging structures like farm ponds and reservoirs by the village community. ये जो सामने जो नाला दिख रहा है ये है सोरू नाला जा रहा है। 20 फीट जो पहाड़ी दिखाई दे रहा है ना, सोरू नाला वहीं निपानिया से आ रहा है। इधर से जो ऊंचा पहाड़ दिखाई दे रहा है वही है रीज लाइन ये नाला का। अभी ये रीज लाइन आहिस्ता आहिस्ता हम लोग नॉर्थ वेस्ट का तरफ जाते रहेंगे तो ये जो ऊपर में जो पेड़ दिखाई दे रहा है, जंगल दिखाई दे रहा है, उसी का बीच में एक के बाद एक पहाड़िया गांव है। बड़ा पहाड़, पत्रसाल घाटी, ऐसा काफ़ी गांव होते हुए जहाँ से शुरू होता है वो गांव है निपानिया। और चारों तरफ जो नाला ऊपर से पहाड़ जितना पहाड़ी है, बहुत सारे नाला वहाँ से गिर रहा है और ये सब नाला के किसी ना किसी जगह में हमारा सोरू नाला से मिलते हैं। ये पूरा कैचमेंट हो रहा है और इसी को हम लोग छोटा छोटा माइक्रो वाटर शेड में बांटा है। ऐसा 23 माइक्रो वाटर शेड नीचे तक मासलोई नदी तक बना हुआ है। यहाँ से देखने से This is Nipania village, located in Pakur district, where the Pahadia and Santhal communities reside, and they have been facing water-related issues for many years. The villagers formed a Gram Sabha and collectively decided to work on the watershed method to address this problem. इन जगह नहीं एक चेक डैम बना रही आदिन ते अमान दिया लेन हन ओढ़ान हो पे हो तलोड़नाय सब्जी हो लगा तलोड़नाय सारा चीज़ें नमे आदिन ते ही नमे कुरुम टुमजा का नमे लगा तो चाहिए पदे पदेन ए नंदनाम लगे कामन कीड़े इंदर कीड़े हातरें सिकात नारा देन गोगी मान्यो तो थोती से अब ड्राइनर कौन ताला इंदर अब उन्हें तर गोगा कुंपो इंदर कुंपो. The watershed work can't be done alone. For this, the community must collectively participate with proper knowledge. कि हम लोग समुदाय से लोगों के साथ हम लोग बैठक करके बोले पानी का जो दिक्कत हो रहा था आप लोग का हो रहा था, तो पहले जो बुजुर्ग लोग ने बताया कि नहीं हम लोग का इधर पहाड़ में पूरा जंगल था कि हम लोग वहाँ से झरना फूटता था और उसी पानी से हम लोग का थोड़ा सुविधा होता था. अब धीरे धीरे दिखेंगे कि यहाँ पर जंगल धड़ल्ले से कट आए. तो हम लोग इसी तरह समुदाय के साथ बैठक करते करते हम लोग नाला को लेकर हम लोग बात किए. बारिश पहाड़ी में भी होता है, यहाँ भी होता है, तो पानी जाता कहाँ है इतना पानी. यहाँ पर्दा नाला जा रहा है, यहाँ बगल से कपाट नाला, यहाँ से आपका सोवना नाला, यहाँ से बड़ू नाला. आपका जमीन इधर है, तालाब नीचे है और पानी ऊपर से आ रहा है. तो आपका इधर हम पानी रोक देंगे तो क्या होगा. पानी मतलब कोई चीज से इधर मतलब खाल बना के लाएंगे. मतलब जिसका जमीन नीचे रहेगा, मैं ऊपर पानी रोक दिया तो नीचे से तो नीचे जाएगा. तो जमीन में नमी बढ़ेगा क्या, बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा. तो ये जो काम कर रहा है इधर से लेके इधर तक, यही तो वाटर शेड हो गया. The process of watershed development begins at the ridge area, which is the higher part of the hills or uplands. To achieve this, we create obstruction by building stone bunds using locally available rocks, stones and soil. This helps to stop the flow of water and soil during rainfall. Ragwante bayo name bay meherbandi hoveila ragwante hovayo jolana lati jangir hoveila aro खेती बाड़ी के जमीन जolana lati जमी की जंगी हो बना रही पहला बाय बेला था इनोर से बना रही था बायो. After intervention in the ridge areas, staggered contour trenches are built on the hill slope. This not only slows down the water flow, but also recharges the groundwater. আমরা যেদিন থেকে শুরু করেছি এগুলো তো সব নেড়া হয়েছিল, বুঝলেন, সব নেড়া এই সমস্ত গাছগুলো. 2018তে শুরু করার পরেতে আমরা যা দেখছি একদম সবুজ. দেখছেন এদিকে চারিদিকে গাছপালা, আমাদের এত সুন্দর সবুজ গাছ হয়েছে, মানে সেটা চিন্তা করা যায় না, বুঝলেন. जो हीरापुर का पूरा वाटर शेड है, ये इसका ईस्ट साइड में ये है धोबा घाटी एरिया, जिसमें आप देख रहे हैं कि एकदम ये ड्राई लैंड है, एकदम डेजर्टिफाइड हो चुका है, मतलब रेगिस्तान जैसा बन गया है. जंगल पूरा काट गया है बोल के ऊपर का मिट्टी पूरा धुल गया है. और इसी का कॉन्ट्रास्ट में आप उस तरफ देखेंगे तो उधर
हम लोग 4-5 साल उधर काम भी किए हैं। जंगल बढ़ गया है उधर, सब गांव वाले बहुत पेड़ पौधा लगाए हैं, ये तालाब काटा गया है। এইটা হচ্ছে সিড বল, এটাতে কেঁচো সার, মাটি আর বালি দিয়ে তৈরি করেছি। বিভিন্ন ধরনের যে বীজ আমরা সংরক্ষণ করি, যেমন বিভিন্ন ফল, যেমন জাম আছে, কাঁঠাল আছে, আম আছে। তো আমরা প্রত্যেকটা স্কুলে যাই আমি, এবং প্রত্যেকটা ছেলেকে আমি এই সিড বল তৈরি করা শেখাই। আমাদের যে ছোট ছোট আদিবাসীরা আছে তারা তো গুলটি মারে, তারা তো পাখি মারে। আমরা এভাবে যে ওদের সেটা মজাও পেয়ে যাবে। This is Hirapur village in Dumka district. Thanks to Mangal Murmu's effort, the once barren and depleted forest land has been restored. हम जब आया यहाँ हीरापुर में देखे, बरसात में जो पानी होता था तो ये नाला में सब पानी निकाल के नदी में बह जाता था। तालाब तालाब कुछ भी नहीं था, चेक बांध भी नहीं बना हुआ था, और उस समय काम का ही नहीं मिलता था। तो हमने सोचने लगा कि कैसे बांध किया जाए। तो चिंता करते करते हमको लगा कि ऐसा देवी का नाम याद आया हमको। तो ये जो पर्वत ऊपर में है ना, तीनों पर्वत है यहाँ, तो ऊपर में गया और जाके देखा कि मट्टी सब चले गया पानी में। बहुत बड़ा बड़ा नाला है जिसमें ये ड्रेन बंद हो गया। देखने के बाद मंगोल लोग आया और बहुत सारा यंग ग्रुप को बुला के लेकर आया। तो हम लोग बैठ के मीटिंग किया, पर्वत के ऊपर मेड़ बांध किया। पहली बार जब कर दिया तो इतने बारिश हुआ, बरसात का टाइम तो बारिश होता ही है, तो वहाँ 2-3 घंटा रुक गया। पानी निकालते हैं इधर उधर, लेकिन बहुत से ज़्यादा पानी वहाँ एकदम खड़ा हो गया, पानी रुक गया। तो जब पानी रुक गया तो पर्वत का नीचे बहुत सारा गड्ढा है, खंडा है, गुहा है, गुम्फा है, जो उसका अंदर पानी चल जाता है। तो बाकी पानी वो नाला में आता है, उसको चेक डैम दिया। चेक डैम में क्या हुआ, वो पानी वहाँ भी थोड़ा रुकता है, फिर पानी आ जाता है। उसको भी हम लोग पहली बार बहुत इंटरेस्ट लग गया। तो इस साल 4th ईयर है, तो 4th ईयर में हम लोग अभी भी जब पिछले 3 साल में हम लोग काम किया, जितने सारा छोटा छोटा तालाब किया उसमें सब पानी है। After the work is completed on the upland and slope, the water flows from small streams. These streams require treatment such as gully plugging at specific intervals based on the slope and length of the stream. और लोकल जो चीज़ हमको मिलता है, इधर पत्थर बहुत मिलता है, इसलिए पत्थर लेके ही हम लोग काम कर रहा है। तो हम गली प्लग बनाते हैं तो वो पानी का दांत निकाल देते हैं कि उसके साथ जो ये मिट्टी ये वगैरह जा रहा है वो सब उधर फंस जाता है। तो फिर पानी अगले साइड में प्लेन पानी होता है, सो उसका इरोसिव कैपेसिटी भी कम जाता है, तो उसका मोमेंटम भी कम जाता है। इसके लिए वो पानी खाता भी कम है मिट्टी को। अगल बगल जो जंगल झाड़ी देख रहे हैं, पहले इतना झाड़ी नहीं था। अब जो गिले ब्रिज बनने के बाद जो हम लोग देख रहे हैं वो झाड़ी भी हो गया और नीचे वो लोग खेती कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ और देखने को मिलता है कि गली प्लगिंग में आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी फंसा हुआ है आगे में और पत्ता फंसा हुआ है, ये पत्ता धीरे धीरे करके जो है मिट्टी बनेगा, और इसका उपयोग गांव नीचे जो गांव है वहाँ पे लोग जो रहते हैं खेती में या किचन गार्डन बनाने में इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि ये मिट्टी जो है उर्वरक क्षमता जो है बहुत ही ज़्यादा है, और इस मिट्टी का उपयोग समुदाय के लोग जो है किचन गार्डन में लोग करते हैं। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जल जंगल ज़मीन पूरा उजड़ रहा है, ये झारखंड विकास परिषद का एक छोटा सा प्रयास है निपनिया गांव के लिए। पानी को बचा सके, जंगल को बचा सके, उसके लिए पौधा जो हम लोग लगा रहे हैं, और आसपास में जो यहाँ का पारंपरिक जो पौधा है
उसको और बढ़ाने के लिए, उसको और संरक्षण करने के लिए हम लोग का प्रयास है। और ये निरंतर ये प्रयास जारी रहेगा ताकि हम लोग भी बच सके और यहाँ के समुदाय अच्छे से यहाँ जी सके। इस प्रयास में हम लोग काम कर रहे हैं। ये एक चेक डैम बनाया गया है, तो पूरा नाला 2 किलोमीटर है, तो हम 15 गाली प्लगिंग किया है। तो जितना पानी आएगा, जितना मिट्टी आते रहेगा, सब गाली प्लगिंग में जमते जमते आएगा। तो ये जो लास्ट तक जमेगा, खाली पानी तक पानी जमेगा। एवरेज स्पीड यहाँ 25 किलोमीटर पर आवर में चला जाएगा ये से पानी। लेकिन जब ये पानी को मैं रुकते रुकते भेजेंगे तो ऊपर से भी पानी आहिस्ता होते रहेगा, और मिट्टी का नीचे से जब जाएगा तब वही पानी 40 सेंटीमीटर जाएगा एक दिन में। इसका मतलब क्या हुआ ना, मिट्टी का नीचे हमारा पानी बहुत दिन तक रहेगा। तो जो पानी एक दिन में यहाँ से बांसलोई नोती होते हुए गंगा चला जाता, उसी पानी को वहाँ मिट्टी का नीचे से जब भेज रहा है तो 2-3 साल लग जाएगा गंगा पहुँचने में। तो यही है वाटरशेड का मेन थीम, जो हम पानी को कितना आहिस्ता आराम से भेज सकता है। तो हम जंगल को और मिट्टी को और पत्थर को सबको एक साथ देखेंगे इकोसिस्टम का तरफ से, तब ऑटोमेटिकली पानी गांव में मिलेगा। The main purpose of a watershed is to conserve soil and water in order to recharge the groundwater, which are of two types, shallow and deep aquifers. For example, when watershed work is done on the ridge to valley concept, then firstly, the shallow aquifer is filled, that is wells and ponds. After this, the water seeps further down, which fills the deep aquifer like tube well. The source of water lasts for years. ये झाड़ी का पीछे से पूरा बैरन लैंड था, तो अभी 3-4 साल के काम के बाद ये जंगल ऑलमोस्ट आपका 50-60 मीटर ये गांव के पास आ गया है। और ऊपर का भी जो जंगल था वो भी अभी मतलब ज़्यादा डेंस हो गया है। तो यही हमारा अल्टीमेटली गोल है कि ये जंगल वापस आ जाएगा तो वो पूरा वाटर साइकिल को स्टेबलाइज कर देगा, मिट्टी को पकड़ लेगा, पानी आता रहेगा, बारिश आता रहेगा। इसका असर हम लोग को देखता है कि पानी आस्ते आस्ते रुकते आता है और उसका जो वाटर लेवल नीचे में देखता है, ज़्यादातर उधर बढ़ जाता है कि उधर आसानी से 2 खेती का भी लाभ ले रहे हैं। पहले तो एक ही बार फसल होता था और अभी जो इस पानी से हम लोग 2 बार खेती कर लेते हैं। सब्जी वगैरह लगाते हैं, टमाटर, बैगन, आलू, सब अदरक। This is the fundamental truth of the watershed. Just as a mother nurtures her children selflessly, similarly, the watershed also takes care of all selflessly: the water, forest, soil, crops and farmers.